Assalamu alaikum viewers. Myself Bushra Jabi and I'm a clinical psychologist. Welcome to my YouTube channel Psyche Potential. Live easy, live inspirational. Before going to the video, please subscribe to my channel and press the bell icon and like the video for my motivation. Now let's go to the video. The topic of our today's lecture is Karen Horney. We will discuss the Karen Horney's overview and her theories. First of all, let me tell you about the biography. She was born in September 16, 1885, Germany, youngest child, only daughter, and she was the daughter of ship captain and from his second wife. Victorian upbringing, she had the romantic tendencies towards an elder brother, became a teacher for 3 years to save for medical school, triggered by the misogynist article. Misogynist article was the article which was against the uh, females, and she was married to a successful lawyer. Oscar Horney produced three daughters. Death of the family members. She was disturbed actually from the death of the family members. 1913, interest in the psychoanalysis, visit to Carl Abraham, and she was the disciple of Freud. In 1926, she was divorced from her husband and transferred to the US. 1952, died while she was sleeping. First of all, Karen Horney gave the psychoanalytic social theory. She said that social and cultural conditions largely responsible for shaping personality. And then she said, when the needs of our childhood needs are do not met, then then the person develop the basic hostility and basic anxiety. And to meet those basic anxiety and basic hostility, person has three combat ways. First one is moving towards the people, and the second one is moving against the people, and the third one is moving from the people. And in the next slides I will tell you कि किस तरह से ये जो चीज़ें हैं, एक इंसान जब अपनी ज़िंदगी में अपनी चाइल्डहुड की नीड से नहीं मेट कर पाता तो किस तरह से उसके अंदर बेसिक एंजाइटी और बेसिक हॉस्टिलिटी अराइज होती है. अब जी बेसिक हॉस्टिलिटी और बेसिक एंजाइटी है क्या. बेसिक हॉस्टिलिटी तब अराइज होती है जब पेरेंट्स जो हैं बच्चे की जो नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाती, नीड्स फॉर द सेफ्टी और जो है वो सेटिस्फेक्शन नीड्स को वो सेटिस्फाई नहीं कर पाते, तो हॉस्टिलिटी की जो है वो डेवलप होती है. अब बेसिक एंजाइटी तब डेवलप होती है जब repressed hostility leads to the feelings of insecurity and apprehension. जब हमारे पास बस जो हॉस्टिलिटी की जो उसकी नीड्स हैं जब वो रिप्रेस्ड हो जाएंगी तो फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी और अप्रहेंशन की तरफ लेके जाती है पर्सन को. अच्छा, अब यहाँ पर जो है एज वी ऑल नो एंड वी ऑल नीड द and we all protect ourselves from basic anxiety, so we use these type of coping strategies to protect ourselves from the anxiety. But here we will talk about the neurotics, that how neurotics deal with the anxiety, deal with the basic anxiety. So the neurotics are very compulsive. Neurotics deals with the anxiety by repeating the same unproductive strategy. एंड न्यूरोटिक्स जो है वो विशियस सर्कल जो है वो चलाते हैं टू मीट देयर अनप्रोडक्टिव, टू मीट देयर बेसिक एंजाइटी. And then they use there is some neurotic needs, because neurotics we will talk about here with the perspectives of the neurotics, क्योंकि हम सब बेसिक एंजाइटी से डील करने के लिए कोई ना कोई कॉपिंग स्ट्रेटजी यूज करते हैं, बट द न्यूरोटिक जो है वो कंपल्सिवली ड्राइव्स होते हैं उनके अंदर. तो यहाँ पर जो है वो हम देखेंगे कि किस तरह से जो न्यूरोटिक्स की जो नीड्स हैं वो उनको किस तरह से वो अपनी बेसिक एंजाइटी को नीड्स के थ्रू जो है वो कोप करते हैं. यहाँ पर 10 कैटेगरीज बताई गई हैं, फ्रॉम विच फॉर अफेक्शन एंड अप्रूवल इज द वन, जिसमें क्या है कि न्यूरोटिक जो लोग होते हैं दे वांटेड टू प्लीज एवरीबडी. एंड देन आती है फॉर अ पावर पार्टनर, उनकी जो न्यूरोटिक नीड्स होती हैं फॉर अ पावर पार्टनर, वो अपनी नीड्स को फुल करने के लिए एक पावरफुल पार्टनर चाहते होते हैं. एंड उसमें क्या होता है, वो पावरफुल पार्टनर क्यों चाहते हैं, क्योंकि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होता है. वो चाहते हैं कि जो उनका पावरफुल पार्टनर है वो उनको हेल्प आउट करेगा. ठीक है. और टू रिस्ट्रिक्ट वंस लाइफ विद इन नैरो बॉर्डर्स. और फिर क्या है कि
वो ये क्या अपनी अपनी बेसिक एंजाइटी से डील करने के लिए क्या करते हैं कि वो अपनी लाइफ को जो है वो एज मच एज सिंपल जो है वो अपने नैरो बॉर्डर्स में जो है वो अपनी लाइफ को रखना शुरू कर देता है। एंड वो अपनी एबिलिटीज़ को जो है वो डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं, और जो अपनी पर्सनैलिटी है उसको डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं फॉर पावर, एंड दे कंट्रोल अदर्स टू अवॉइड अपीयरिंग वीक। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि वो अपनी बेसिक एंजाइटी से मीटअप करने के लिए लोगों को कंट्रोल करना शुरू कर दे, इस सेंस के साथ, ताकि लोग उनको जो है वो वीक ना समझे। फिर आगे आता है टू एक्सप्लॉइट अदर्स, दे यूज देयर दे रिड्यूस देयर बेसिक एंजाइटी बाय एक्सप्लॉइटिंग अदर्स, एंड जो है वो आल्सो फियर बीइंग एक्सप्लॉइटेड अदर्स। ठीक है, वो दूसरों को एक्सप्लॉइट इसलिए करते हैं ताकि दूसरे उन्हें एक्सप्लॉइट ना करना शुरू कर दें। और सोशल रिकॉग्निशन एंड प्रेस्टीज में आता है कि दे ऑलवेज वांट टू बी इम्पोर्टेंट, वो चाहते हैं कि हमेशा उनको अहमियत दी जाए। फिर पर्सनल एडमायरेशन में आता है कि उनकी जो है वो अपनी पर्सनल एडमायरेशन के लिए, यानी कि अपनी तारीफ के लिए वो चाहते हैं कि उनकी सेल्फ स्टीम बूस्ट रहे, तो इस तरह से भी वो अपनी एंजाइटी को जो है वो कोप अप करते हैं। फॉर एम्बिशन एंड पर्सनल अचीवमेंट ओनली बीइंग द बेस्ट विल डू। ठीक है, तो ये एक समझते हैं कि अपने अपने एम्बिशंस और पर्सनल अचीवमेंट के लिए वो अपने आप को हमेशा ही बेस्ट समझते हैं, कि वो हम जो है अगर बेस्ट रहेंगे तो ही जो है वो हम अपनी एंजाइटी को कोप कर सकते हैं। न्यूरोटिक नीड्स, न्यूरोटिक नीड्स में जो फिर फर्दर आगे नाइन्थ हमारे पास न्यूरोटिक कैटेगरी आती है, उसमें ये कि फॉर सेल्फ सफिशिएंसी एंड इंडिपेंडेंस, स्ट्रॉन्ग नीड टू मूव अवे फ्रॉम अदर्स। ठीक है, वो चाहते हैं, वो कहते हैं कि हम सेल्फ सफिशिएंट और हम इंडिपेंडेंट हैं, सो उनके अंदर जो है वो दूसरों के साथ जो है वो मिलकर काम नहीं करते, तो उनके अंदर स्ट्रॉन्ग नीड होती है टू मूव फ्रॉम द अदर्स, ताकि वो दूसरों से दूर हो जाए। The 10th one is for perfection and unsellability. Unassailability. Acha, they can't make mistakes or have personal flaws. They think that they can't make mistakes, and they are having no personal flaws. So that is why they deal. That is how they deal with the basic anxiety. अच्छा, because अब न्यूरोटिक नीड्स जो हैं उनको बेसिकली 3 तरह की कैटेगरीज में जो है वो 3 तरह की कैटेगरीज उनकी बनाएंगी। ठीक है, क्योंकि अब उन उन न्यूरोटिक नीड्स की जो 3 तरह की कैटेगरीज जो है वो बनाई गई, तो वो जो बनाई गई वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए बनाएंगे, यानी कि बेसिक एंजाइटी से कोप करने के लिए बनाएंगे। और वो बेसिक एंजाइटी से कोप करने के लिए उन्होंने जो है वो न्यूरोटिक लोग जो है वो एक अपना सेल्फ आइडियलाइज्ड इमेजेस बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब उसको जो नीड्स को जो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, उनको न्यूरोटिक ट्रेंड्स बोलते हैं। वो न्यूरोटिक ट्रेंड्स क्या हैं? First one is moving towards the people, second one is moving against the people, third one is moving away from people. These defenses can be either normal or neurotic. अब ये डिफेंसेस जो हैं ये नॉर्मल लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं और न्यूरोटिक लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द न्यूरोटिक पीपल, तो क्या होता है कि when they have the desire to move toward the people, उनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो कंप्लाइंट पर्सनैलिटी होती है। ठीक है, और उनकी न्यूरोटिक नीड्स क्या होती हैं? अफेक्शन, अप्रूवल, पावरफुल पार्टनर उनकी होती है, नैरो लिमिट्स होती है। अच्छा, दे प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट फीलिंग्स ऑफ हेल्पलेसनेस। वो अपने आप को किस तरह से बेसिक एंजाइटी से निकालते हैं? बाय प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट फीलिंग्स ऑफ हेल्पलेसनेस। मॉर्बिड डिपेंडेंसी होती है, वो डिपेंडेंसी शो करते हैं, इस तरह उन्हें लगता है कि वो जो है वो लेस हेल्पलेस शो, मतलब वो लगता है कि वो लेस हेल्पलेस है, तो इस तरह से जो है वो लोगों की तरफ डिपेंडेंसी शो करते हैं, ताकि वो जो है लोगों से हेल्प आउट ले सकें टू कोप अप फ्रॉम द बेसिक एंजाइटी। अच्छा, इसके बाद होता है कि मूविंग अवे फ्रॉम पीपल। ये लोग डिटैच पर्सनैलिटी होती है, इनकी न्यूरोटिक नीड्स होती हैं, वो समझते हैं कि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, हम परफेक्शन है, और जो है वो अपने आप को फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन से बचाने के लिए जो है वो प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन। तो वो जो है वो फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन में जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट फील करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर बात आती है, अब हमने पढ़ ली है कि किस तरह से न्यूरोटिक ट्रेंड्स
moving towards people, moving against people and moving away from people. अब यहाँ पर बात आती है सेल्फ आइडियलाइज्ड इमेज पर. सेल्फ आइडियलाइज्ड इमेज जो है, अगर एक पर्सन जो है इज हैविंग अर्ली नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, तो क्या होता है कि उनके अंदर से जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, सेल्फ रियलाइजेशन की जो फीलिंग्स होती है, जो टेंडेंसी होती है, वो रुक जाती है. ठीक है, यानी कि एवरीबडी इज ट्राइंग टू मीट अप द सेल्फ आइडियलाइज्ड इमेजेस. ठीक है, आइडियलाइज सेल्फ इमेज. ठीक है, एवरीबडी इज ट्राइंग टू कोप अप फ्रॉम द बेसिक एंजाइटी एंड दे वांट टू आइडियलाइज देयर सेल्फ इमेज. ठीक है, अल्टीमेटली वो अपने सेल्फ की तरफ जाना चाहते हैं. बट अगर उसके दरमियान कोई नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आते हैं, तो वो आपका जो सफ़र है टूवर्ड्स सेल्फ रियलाइजेशन, उसको जो है वो ब्रेक कर देता है. ठीक है, तो जो न्यूरोटिक लोग होते हैं, दे डेस्परेटली सर्च फॉर द सेंस ऑफ आइडेंटिटी लीड्स टू क्रिएशन ऑफ सेल्फ आइडियलाइज्ड इमेज. अब वो क्या करते हैं कि वो अपने आप को इस तरह से गोल्ड लाइक पिक्चर जो है ना, वो अपने आप को पोर्ट्रेट करना शुरू कर देते हैं कि वो जो है वो सम सॉर्ट ऑफ कोई गोल्ड लाइक या कोई सैनिटी टाइप जो है ना, वो फीलिंग्स रखना शुरू कर देते हैं. अब क्या होता है कि अब जब ये बेसिक एंजाइटी से कोप अप कर रहे होते हैं, तो वो 3 तरह की जो है वो न्यूरोटिक ट्रेंड्स को रिफ्लेक्ट करते हैं. ठीक है, अब किस तरह से वो जो 3 न्यूरोटिक ट्रेंड्स हमने पढ़े थे कि कंप्लाइंट, एग्रेसिव और डिटैच्ड जो पर्सनालिटीज हमने पढ़ी थी, वो किस किस तरह से अपने आप को देखते हैं. कंप्लाइंट अपने आप को देखती है एज गुड एंड सैनिटी. ठीक है, वो अपने आप को गुड और जो है ना वो सुफियाना टाइप में अपने आप को देखते हैं. और अग्रेसिव पर्सनैलिटी कैसे देखते हैं, स्ट्रॉन्ग और हीरोइक टाइप अपने आप को देखते हैं. और जो डिटैच लोग हैं वो कैसे देखते हैं, वाइज एंड सेल्फ सफिशिएंट जो है वो इमेजेस में अपने आप को देखते हैं. अब इसमें हमारे पास जो है वो सेल्फ आइडियलाइज्ड सेल्फ इमेज में हमारे पास 3 तरह के जो है वो एस्पेक्ट्स देखने में आते हैं. और वो एस्पेक्ट्स हैं न्यूरोटिक सर्च फॉर ग्लोरी, न्यूरोटिक क्लेम्स एंड न्यूरोटिक प्राइड. अब न्यूरोटिक सर्च फॉर ग्लोरी जो लोग होते हैं, जो यानी कि जो न्यूरोटिक्स होते हैं, वो व्हेन दे सर्च फॉर द ग्लोरी, तो वो क्या करते हैं कि ड्राइव टू एक्चुअलाइज वंस आइडियल सेल्फ. ठीक है, वो अपने आप को, अपनी अपनी जो सेल्फ होती है, उसको जो है वो एक्चुअलाइजेशन की तरफ ड्राइव करना शुरू कर देते हैं. जिसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स देखने में मिलते हैं व्हेन दे आर सर्चिंग फॉर द ग्लोरी. तो उसमें हमारे पास आती है नीड फॉर द परफेक्शन, न्यूरोटिक एम्बिशन एंड ड्राइव टुवर्ड्स अ विंडिक्टिव ट्रिम्फ. अब नीड फॉर परफेक्शन में क्या होता है कि वो अपनी पर्सनैलिटी को जो है वो आइडियलाइज सेल्फ की तरह ट्रीट करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, वो अपने आप को कहना शुरू कर देते हैं यू शुड डू दिस, लाइक ट्राइन ऑफ द शुड. ठीक है, वो कहना शुरू कर देते हैं कि यू शुड डू दिस, यू शुड नॉट डू दिस, टू लीड्स टुवर्ड द परफेक्शन. ठीक है, अब न्यूरोटिक एम्बिशन क्या होते हैं कि इनके अंदर कंपल्सिव ड्राइव होती है टुवर्ड्स सुपीरियरिटी. तो वो ये लोग क्या करते हैं कि ये सुपीरियरिटी की तरफ जो है ना वो कंपल्सिवली ड्राइव होना शुरू हो जाते हैं. Drive toward a vindictive triumph, the drive to put others down. They always try to put others down. And then there comes the neurotic claims that they claim that they are the best and they have the special privileges than others, and they consider themselves that they are having some special powers in which they claim that they are more privileged as compared to the other people. Neurotic pride, they false pride based on their idealized self. तो क्या है कि वो फॉल्स प्राइड में ही, अपनी आइडियलाइज्ड सेल्फ के ऊपर ही फॉल्स प्राइड को जो है वो करना शुरू कर देते हैं. एंड देन देयर कम्स द पॉइंट विच इज सेल्फ हेटेड पॉइंट. अब सेल्फ हेटेड किस तरह से होती है? सेल्फ हेटेड तब क्रिएट होती है व्हेन यू आर कोपिंग विद द एंजाइटी but you find your real self does not matching with your idealized self. The gap between the real self and the idealized self created the self-hatedness. ठीक है, अब सेल्फ हेटेडनेस लोग क्या करते हैं, उनके अंदर रिलेंटलेस डिमांड ऑफ द ऑन द सेल्फ होता है, यानी कि वो अपनी सेल्फ से जो है वो स्ट्रेंज थिंग्स डिमांड करना शुरू कर देते हैं. And they always trying to say themselves that you should do this and you should not do this, and I think I should behave in this manner and I should not behave in this manner. So these type of feelings they start developing. तो merciless self accusation में ये होता है कि they always start their self accusation. ठीक है, they start their blaming themselves and they start not valuing themselves. And then there comes the self content
contempt, in which that in this self content they कॉन्टेम्प्टिंग देयर सेल्फ्स, ठीक है, जिसमें वो क्या करते हैं कि अपनी सेल्फ को जो है वो हकारत की नज़र से या बुरी नज़र से अपने आप को देखना शुरू कर देते हैं, बिकॉज दे आर इन द फीलिंग्स ऑफ सेल्फ हेटेडनेस. So next comes the self frustration. They started having frustration with themselves and their self torment and their self destructive actions and impulsive. They start having these type of feelings with themselves. Okay, now there comes the feminine psychology, the most important part and the most recognized part in the Karen Horney's theory. Psychological difference between men and women are due to the culture and social expectations rather than to the anatomy. She was studying an article about the misogyny, and then she triggered, and then she got the idea to support the feminism. And she said that the difference between the man and woman are just culturally and not biologically, not anatomy, because men think that they are superior from the woman, and this thinking of the man is just because of the culturally, not the biologically. ठीक है, फिर उसने यहाँ पर जो है वो एडिपस कॉम्प्लेक्स ऑफ फ्रॉइड पे उसने थोड़ा सा जो है वो क्रिटिक किया, एंड शी सेड दैट सेक्सुअल अट्रैक्शन जो होती है ये सिर्फ लर्निंग होती है एडिपस कॉम्प्लेक्स में, ये बायोलॉजिकल नहीं होती है. देन शी क्रिटिक द फ्रॉइड्स कॉन्सेप्ट ऑफ penis in way untenable. If that exists, should be the worm in way. First concept was the penis in way was that the women are having the women feels that they are lack of the penis part of the male. But then Karen Horney defends this, that women are actually having the women are that male are actually missing the worm, because worm is the more powerful thing the women are having. So that she gave the worm in way to this phenomena. She called the worm in way to this phenomena. Thank you, and take care of yourselves, and do not forget to like my video and subscribe my channel. Bye.